Hello guys, this is Rahul Bhaiya. Welcome to my YouTube channel. So, how are you guys? So, UPSC 2025 mains is almost over, and GS first paper is also over. Various teachers have discussed the questions, right? So, in this video, what we'll do is we'll discuss the way forward. That is how to deal with GS history. From pre and mains perspective for 2026 and 2027. That is future. Right. So first we'll discuss the questions. Discuss in the sense that we'll discuss whether the questions were easy or tough. Right. So the criteria for considering easy is what was in accordance with PYQs. If the questions were in accordance with PYQs, then we'll consider them easy, though they may be tricky, right? And we'll also discuss the prelims questions, to give a fuller perspective. Then what is asked from standard sources like NCERTs and Spectrum, then what coaching institutes generally teach. So if the question asked by UPSC is on these lines, then we'll consider it easy. It may be tricky, but we'll consider it easy. And question which is not in line with these three criteria, we'll consider it tough. So now how to deal with history, this is what is our motive. So let's start. First we'll discuss the mains questions. Now question number 1, discuss the salient features of the Harappan architecture. Now what usually students do is they study town planning, right? Even teachers also teach this town planning, though this town planning is also part of Harappan architecture, but it is just one part. So you can say this is a tricky one, right? So students may or may not perform it properly, right? So it means you need to think also beyond a fixed box, right? Because ऐसा नहीं है वो हमेशा टाउन प्लानिंग ही पूछते रहेंगे, ठीक है? तो आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है, and that's why solving mock tests, giving mock tests helps you a lot. और क्लास में भी student teacher interaction, this also helps, and the teacher should encourage students to think about the topic, to try to cover the dimensions which UPSC may ask. Now question number 2, examine the main aspects of Akbar's religious syncretism. Now this will be considered an easy one, because usually Akbar's religious policy, you can say many of the institutes they teach, and students also cover this, like Mahzarnama, Ibadat Khana, etc. So this is what you have to write, right? Giving some good examples, like linking it with the Chicago Religious Parliament, which was held 300 years after this. So this is how you can manage. This will be considered a easy question. Now the sculptors filled the Chandela art form with resilient vigor and breadth of life. Elucidate. Now this is not easy, because usually early medieval period is neglected, as I have already mentioned in past videos, right? And that too, people just study for prelims. This Chandelas, usually teachers and students also teach this for prelims, right? So now we have to keep in mind that because Khajuraho, right, we have some idea, and in temples we cover Khajuraho temple architecture also little bit. Usually तो हम इसको pre में ही पढ़ते हैं, right? तो अब देखो एक और इसमें बहुत बड़ा lesson है which we need to keep in mind for future, that all the major themes we have to cover. वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, because हम ये नहीं कह सकते that this is not a major theme, because this Khajuraho sculpture is also very famous, world famous. It is a UNESCO World Heritage Site. तो ये करना तो चाहिए था हमको, but usually students नहीं करते, right? So यहाँ पे message क्या है कि जितनी भी themes बनती हैं वो तो आपको करनी पड़ेंगी, if you want to secure a good rank and if you want to secure your selection. अब जो competition है that is becoming tough year after year. ये 2025 का prelims है, इसमें एक idea लगा इस बार students को, because even जिनका अच्छा score था, मेरे कुछ students हैं उन्होंने अपना 90 भी claim किया था, but उनका भी नहीं हुआ, ठीक है? तो अभी जब कट ऑफ आएगी तब पता चलेगा, राइट? बट एक बात तो पक्की है, दैट नाउ लेवल ऑफ कंपटीशन हैज़ इंक्रीज्ड एंड इट विल फर्दर इंक्रीज इन 26 एंड 27. सो यू कैन नॉट लीव एवरीथिंग, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग, ठीक है? आप कुछ छोड़ नहीं सकते, आपको सब अच्छे से कवर करके जाना है, नहीं तो क्या होगा, सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं गाइस.
नाउ महात्मा ज्योतिराव फुलेज राइटिंग्स एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स टच्ड ओके ऑलमोस्ट ऑल सबाल्टर्न क्लासेस, ठीक है। अब देखो यूजुअली ज्योतिराव फुले को हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, ठीक है, उनको डिटेल में हम नहीं पढ़ते मेंस में, दिस इज़ अ फैक्ट, ना कोई इंस्टीट्यूट पढ़ाता है ना स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। सो अगेन दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ टफ वन। अब देखो इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस सबाल्टर्न क्लासेस देन ऑल्सो दिस क्वेश्चन वुड बी डिफिकल्ट। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऑल द मार्जिनलाइज्ड क्लासेस, ओके, उनके बारे में आपको बताना था जो ज्योतिराव फुले ने टच किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही नॉट जस्ट टॉक्ड अबाउट शूद्रास एंड दलित्स, ओके, बट ऑल्सो वुमेन, पेजेंट्स, ओके, पेजेंट्स भी टू सम एक्सटेंट ट्राइबल्स ऑल्सो। तो आपको इनके बारे में बताना है जो ज्योतिराव फुले ने कहा है। एंड नाउ दिस इज़ अ 250 वर्ड्स क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास ठीक ठाक मसाला होना चाहिए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो आई विल कंसिडर दिस टफ। अगेन ये एक और ट्रेंड है कि वी कैनॉट से दैट ज्योतिराव फुले वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। हम उसको पढ़ते थे प्रीलिम्स में, बट अब मैसेज क्लियर है कि जो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको आपको मेंस पर्सपेक्टिव से भी कवर करना है और साथ में ये सोचते हुए कवर करना है कि what kind of question UPSC can ask, okay, it is also the responsibility of teachers कि वो थोड़ा इस चीज़ पे बच्चों को बोलें कि आप सोचें, ओके, थिंक करें क्लास में, राइट, इंटरेक्शन करें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उससे क्या होता है, इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है और एक पॉसिबिलिटी आती है कि येस दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्योंकि जो अब तक आता रहा है ज़रूरी नहीं है वो आगे भी आए, राइट। मे बी सम क्वेश्चन यू विल फाइंड, बट अगेन इफ़ यू वांट टू क्लियर विद अ गुड रैंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, राइट। Now trace India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations. Okay. Now देखो इसको टफ तो नहीं कह सकते बिकॉज ये तो एक तरह से सिलेबस से ही उन्होंने उठा के पूछा है, बट हम इस तरह नहीं प्रिपेयर करते इसको, और कई लोग तो इसको छोड़ ही देते हैं। तो अगेन लेसन ये है कि आप छोड़ तो कोई भी पोर्शन नहीं सकते, वेदर इट इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, अगेन आप नहीं छोड़ सकते। और आपको उसमें जो भी मेजर थीम्स हैं उन सबको आपको कवर करना पड़ेगा, राइट। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन अगेन ये भी इजी क्वेश्चन है, बट इसमें इन्होंने केवल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से पूछा है, राइट, बट अगेन दिस कैन बी रिटन, सो आई विल कंसिडर इट इजी वन। इसको सबने किया भी होगा जो मेन दे रहे हैं, ओके। सो एक बार प्रीलिम्स के भी देख लेते हैं, राइट, क्विकली टू हैव अ कंप्लीट पिक्चर। देखो प्रीलिम्स के तो फिर भी क्वेश्चंस इस बार इजी थे कंपैरेटिवली, हिस्ट्री पोर्शन के, फेमस फीमेल फिगर इन, डांसिंग गर्ल, अगेन ये सब पढ़ते हैं तो इजी है। अब ये जो है ये पढ़ते तो हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स टीच भी करते हैं, राइट, बट यूजुअली वी डू नॉट रिमेंबर द रिवर्स। हम कैपिटल्स को पढ़ते हैं, ठीक है, और रीजन को पढ़ते हैं कि कौन सा नॉर्थ में था, कौन सा नॉर्थ वेस्ट, कौन सा साउथ। सो अब ये है कि आपको रिवर्स का भी ध्यान रखना है। अगेन यूपीएससी ने थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, आपको भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, राइट। सो अगेन ईजी तो कह सकते हैं बट ट्रिकी है, सो आई विल कॉल इट मॉडरेटली टफ, राइट। नाउ अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट, सो ये तो यूजुअली जितने भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं सब करते ही हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लास में भी कराते ही हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस तो अच्छे से हम करते ही हैं। सो अगेन दिस इज़ ईजी। नाउ फाहियान, अगेन दिस ऑल्सो स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स दे डू करते हैं, ठीक है, फाहियान, राइट, चंद्रगुप्त सेकेंड, और उसने क्या क्या उसके ऑब्जर्वेशंस थे, राइट। सो अर्घट, अगेन इसको हम बहुत ही ऊपर ऊपर से करते हैं, ठीक है, ये इसको जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, राइट, जो इंडिया की इंडिजिनस थी और जो टर्क्स लेके आए वो आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी, बिकॉज मेंस में भी यूपीएससी ने पूछा था कि टर्क्स क्या क्या क्राफ्ट लेके आए, राइट, उसको यूजुअली ऑप्शनल के बच्चे पढ़ते हैं, बट अगेन जो भी थीम है वो तो अब आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, राइट। अब क्या करें, बट इफ़ यू वांट टू स्कोर अ गुड रैंक एंड सिक्योर योर सिलेक्शन, दिस यू हैव टू डू गाइस, राइट। एंड दिस इज़ नॉट, आई थिंक नॉट जस्ट इन हिस्ट्री बट एवरीवेयर आपको करना पड़ेगा, तो आपको मेहनत थोड़ी पढ़ानी पड़ेगी, राइट। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एज्यूम द टाइटल्स, अगेन ये भी ईजी क्वेश्चन है, बट एज आई सेड अर्ली मेडिवल इज़ अ नेग्लेक्टेड पोर्शन, तो जो इसको छोड़ के जाते हैं वो तो इसको नहीं कर पाएंगे, बट जिसने भी PYQs करे हैं अच्छे से, ओके, इंक्लूडिंग द स्टेट PCS वाले क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट, तो वो तो इसको कर पाएगा, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज़ ऑल्सो ईजी वन, चोलाज में तो ये सब पढ़ते ही हैं, ठीक है, राइट, राजेंद्र फर्स्ट, तो अगेन ईजी वन।
अब ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज एक काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, राइट, जो मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ कि क्या क्या वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट, क्रॉप्स इन इंडिया। अगेन तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम कह सकते हैं टफ, ठीक है, क्योंकि आपको यूजुअली कुछ चीज़ें पता होती हैं जैसे टोबैको, ओके, एट्सेट्रा, बट आपको इतना डिटेल में नहीं पता होता कि इसमें पपाया भी है, गुआवा भी है, ओके, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अगेन ये भी आपको पता होना चाहिए। और पोर्चुगीज़ एक इंपॉर्टेंट थीम है, इफ़ यूल सी PYQs, राइट, इट इज़ इन लाइन विद PYQs दैट पोर्चुगीज़ UPSC का फेवरेट आप कह सकते हो टॉपिक है, बिकॉज 1 क्वेश्चन तो आपको इस पर मिलता ही है, राइट। सो अगेन पोर्चुगीज़ को तो अच्छे से आपको करना ही है गाइज। एंड यूजुअली अभी तक इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मेंस में यूरोपियन कंपनीज पे क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है, तो आपको उसको भी प्रिपेयर करना है दैट वाई इंग्लिश वर एबल टू सक्सीड, ओके, फ्रेंच क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए, पोर्चुगीज़ क्यों नहीं हो पाए, ये अभी तक नहीं आया पोर्चुगीज़ वाला, दिस कैन बी आस्क्ड इन फ्यूचर, ओके। ओवरऑल इनका क्या इम्पैक्ट रहा पोर्चुगीज़ का इंडिया में, बिकॉज ये तो आ गए थे 1492 में, ठीक है, आप देखो तब तो जो बाबर है वो भी नहीं आया है। सो अगेन फ्यूचर क्वेश्चन इस तरह से आपको सोचना है, राइट। नाउ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इसको भी इजी क्वेश्चन ही बोलेंगे, यूजुअली हम करते हैं, और बहुत ट्रिकी इन्होंने नहीं पूछा, प्रोवाइडेड ये फर्स्ट वाले को करेक्ट मान लें, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है करेक्ट ही मानेगा UPSC, बिकॉज जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो संस्कृत कॉलेज के अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला कि नहीं, हमको संस्कृत की ज़रूरत नहीं है, हमको जो एनलाइटनमेंट आइडियाज़ है इंग्लिश की ज़रूरत है, राइट। सो लेट्स सी UPSC क्या कंसिडर करती है, बट मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने दोनों को ही करेक्ट माना है। अब वो जब की आएगी तब पता चलेगा। नाउ विद रिस्पेक्ट टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, अगेन दिस इज़ नॉट अ टफ क्वेश्चन, बट अगेन बात यह है कि आपको इसको ढंग से करना है, NCM को, एंड यूजुअली करते हैं स्टूडेंट्स, ओके, NCM देन CDM देन क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। तो गांधी जी तो इम्पॉर्टेंट थीम है ही प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, राइट। अगेन ये तो एक टफ क्वेश्चन है यूजुअली, बट ऐसे क्वेश्चन तो मिलेंगे, इनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। सो इट्स बेटर टू लीव सच क्वेश्चन, जिसका आपको एक भी ऑप्शन आप एलिमिनेट ना कर पाओ, उसको तो बेटर है कि छोड़ दो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए। अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो टुवर्ड्स दी एंड, जैसे आपको पता है 3 आइटरेशंस में आपको करना चाहिए पेपर, पहले में जो आपको फुली जिसमें श्योर हो, दूसरे में 50-50, और तीसरे में जिसमें आपको एक ही ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। तो वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन आपका कितना स्कोर बन रहा है, किस लेवल का पेपर है, वो जो बैठे होते हैं एग्ज़ाम में उनको आइडिया लग जाता है, तब आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, राइट। बट जिसमें बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको तो आप छोड़ दो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन होते ही हैं, प्री में तो होते ही हैं, आपको पता है, तभी कट ऑफ इतनी कम जाती है। नाउ अगेन NCM पे एक और क्वेश्चन, राइट। तो ये भी आई विल कॉल इट ईजी ओनली, बहुत टफ नहीं है ये, ईजी है, जो स्पेक्ट्रम से ही है एक तरह से, राइट। अब ये आप कह सकते हो थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज ये एज सच तो मेंशन नहीं है स्टैंडर्ड बुक्स में, बट अगेन पता होता है, राइट, स्टूडेंट्स को कि ये उन्होंने किस टाइम बोला था, राइट। तो काफ़ी लंबी चौड़ी उनकी स्पीच है जो उन्होंने न्यूज़पेपर्स को भी दिया था, राइट, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उस सेंस में इसको कह सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, ओके। अगेन ये भी क्वेश्चन ईजी है ऑन PYQ लाइन्स एंड व्हाट यूजुअली टीचर्स टीच, और जो स्टैंडर्ड बुक्स में मिलता है, ठीक है। अब ये जो है ये क्वेश्चन है टफ, वाई आई एम कॉलिंग दिस टफ, बिकॉज इसको यूजुअली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते कि चौरी चौरा के बाद क्या हुआ था, कौन लोग उनको बचाने के लिए आए थे, राइट। वैसे करना चाहिए क्योंकि अगेन पार्ट ऑफ ये जो नॉन कोऑपरेशन है उसका पार्ट है, बट स्टूडेंट्स लीव दिस, राइट। सो इसको मैं टफ बोलूँगा, बट अदरवाइज जिसने अच्छे से पढ़ा है वो तो इसको कर पाएगा, और थोड़ा आप इसमें गेस वर्क भी कर सकते हो, राइट। नाउ ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो इवन आपको ल्यूसेंट जैसी बुक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, राइट। ओके, तो अब देखते हैं राइट कि आपको थीम्स कैसे कवर करनी है, ठीक है। मैं आपको इसमें मेडिवल इंडिया का एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आपको मेडिवल इंडिया अच्छे से कवर करना है, बिकॉज नाउ यू कैन नॉट लीव एंशिएंट एंड मेडिवल, राइट। मेंस में तो आ ही रहा है, प्रीलिम्स में भी आ रहा है, और प्रीलिम्स में तो आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन की फाइट है। एंड द गुड थिंग इज दैट इन प्रीलिम्स UPSC इज नॉट गोइंग डीप,
ओके। स्पेशली मेडिवल में तो डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, एंशिएंट में भी बहुत नहीं जा रहे हैं, बट मेडिवल तो एक यू कैन कॉल इट अ लो हैंगिंग फ्रूट, स्पेशली अर्ली मेडिवल, इस पे इनका फोकस है पिछले आप देख सकते हो 2022 से, ठीक है। तो अब तो आप देख सकते हो करीब 4 साल हो गए, सो वी कैनॉट लीव इट। और इसको छोड़ने का मतलब है कि आप एक तरह से अपना प्रीलिम्स को रिस्की बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपके 2 क्वेश्चन उससे आए और वो आपके डाउट में आ गए, राइट, और जिसने किया है तो आपको पता है 2 क्वेश्चन तो अब कितने इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एक मेडिवल का हम लेते हैं कि कैसे हमको कवर करना है। तो देखो प्रीलिम्स में तो ऑल मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री कीपिंग इन माइंड द लास्ट 12 ईयर्स, स्पेशली लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चंस, ओके, not difficult as UPSC is not going deep. Then cover the important features of political, economic, social and religious life of early medieval period. इसको भी स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, टीचर्स भी नहीं कराते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, क्योंकि अर्ली मेडिवल एक बहुत लंबा पीरियड है, तो उसमें उसके क्या फीचर्स थे पॉलिटी के, इकोनॉमी के, सोसाइटी के और रिलीजियस लाइफ के, क्योंकि इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, राइट। अब देखो मेंस में कैसे करना है, तो आपको इसमें लिटरेचर कवर करना है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड। फॉर इंस्टेंस क्वेश्चंस लाइक एस्टिमेट द अचीवमेंट्स ऑफ 2024 के मेंस में आया था पल्लवास, तो यूपीसी ने एक हिंट दिया, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं और स्मार्ट टीचर्स हैं उनको हिंट मिल गया कि जब वो पल्लवास पूछ सकते हैं तो वो जो और मेजर डायनेस्टीज़ हैं जैसे चालुक्याज ऑफ वातापी, ओके, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास, पालास, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही है। इस बार तो उन्होंने चंदेला पूछ लिया, ठीक है, तो अगेन चंदेला में ऑप्शन तो था उनके पास, बिकॉज खजुराहो तो राइट उसके टेम्पल्स और स्कल्पचर फेमस हैं, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स वो गए हैं, बट यूजुअली हम उस तरह नहीं पढ़ते। तो यूपीएससी को भी पता है कि क्या स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, क्या कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, राइट। तो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स स्टूडेंट्स दोनों की है कि आप होलिस्टिकली सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और जो थीम्स हैं उनको कवर करो, ठीक है। इसमें मेडिवल का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब आगे देखो दिल्ली सल्तनत में, राइट, ये जो पीरियड है इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, मंगोल पॉलिसी, ये भी इनका फेवरेट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आ गया। अब फ्यूचर में जो आएगा वो मुगल के टाइम पे आएगा, ठीक है, राइट, इस पर भी आ सकता है दोबारा, बट कि मुगल्स के टाइम पे क्या क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुए और क्या क्या मुगल्स ने एक्सेप्ट नहीं किए, अगेन ये भी एक एस्पेक्ट है। कुछ ऐसे क्योंकि उस टाइम पे यूरोप में रेनेसा चल रहा है और हमारे जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने कुछ को नहीं एक्सेप्ट किया अंडर दी प्रेशर ऑफ उलेमा, ओके, ऑर्थोडॉक्स उलेमा, दैट हम डिस्कस करेंगे किसी और दिन, ओके। देन पर्शियन लिटरेचर, अरबिक लिटरेचर, इस टाइम पे दोनों इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ये देन जो अमीर खुसरो है उनकी राइटिंग्स, राइट, वो फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी हैं, तो उनकी राइटिंग्स भी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो बहमनी यूजुअली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज आपको पता है 2014 ऑनवर्ड्स तो जो गवर्नमेंट है वहाँ पे चांस तो कम ही है कि मेंस में बहमनी पे क्वेश्चन आएगा। विजयनगर पे तो पूरा चांस है, फेवरेट है यूपीएससी का। अगेन होयसला पे भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उनका आर्किटेक्चर काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते, राइट। और विजयनगर तो आपको अच्छे से करना ही है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए, राइट। प्रीलिम्स में जैसे कि जो ट्रैवलर्स हैं वो उनकी फेवरेट हैं, बट अगेन आप एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल हिस्ट्री सभी आपको देखना पड़ेगा, सोसाइटी। नाउ जो इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पॉलिसीज़ या अचीवमेंट्स हैं रूलर्स के, अगेन चांस तो कम है, बट अगेन वी कैन नॉट लीव, रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज उन्होंने अकबर का पूछ लिया इस बार, तो हो सकता है वो पॉलिसी ऑफ किंगशिप बलबन की पूछ लें, मार्केट रिफॉर्म्स, ये तो यूजुअली करते हैं स्टूडेंट्स, ओके, तो ये आप छोड़ नहीं सकते। कंसोलिडेशन बाय इल्तुतमिश, देन पॉलिसी ऑफ किंगशिप ऑफ बलबन, मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एमबीटी, वेलफेयर वर्क्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक, देन डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत और उसमें फिरोज शाह तुगलक का रोल, ठीक है। देन दिल्ली सल्तनत एंड दी उलेमा क्लास, इनके बीच में क्या रिलेशन था, क्या डायनामिक्स थे, राइट, डिक्लाइन, तो ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। मुगल्स में जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, अगेन ये वो पहले पूछते थे फॉरेन पॉलिसी के, आप देखोगे PYQs 2013 के पहले, ओके, आपको मिलेंगे, कुछ 13 के बाद भी हैं, बट 13 के पहले तो आते थे, तो ये दोबारा उस पर वो पूछ सकते हैं, राइट। जैसे कि मंगोल है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फॉरेन पॉलिसी का दिल्ली सल्तनत के टाइम, और इनके टाइम पे जैसे उज़्बेक है, ठीक है, सेंट्रल एशिया में जो एम्पायर था, उसके बाद देन वी सी पर्शियन एम्पायर, ओके, ईरान में जो एम्पायर था,
तो वो आपको करना पड़ेगा, राइट, जहाँ पे आपको पता है हुमायूं भी गया था, राइट। देन पॉलिसी ऑफ किंगशिप, ठीक है, राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, ये आपको करना पड़ेगा। देन डेक्कनी सल्तनत्स में तो चांस कम है कि मेंस में वो कुछ पूछेंगे, प्रीलिम्स में तो आपको करनी पड़ेंगी, जो जैसे अहमदनगर, बीजापुर, ओके, गोलकुंडा, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है, तो वो आ सकता है, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन ये मेंस का पार्ट है। सूफी भक्ति तो प्री मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है, प्लस सूफी ड्यूरिंग मुगल पीरियड, ओके, ये मेंस में भी आ सकता है और प्रीलिम्स में भी आ सकता है, ओके गाइस। देन अगेन डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, इसको भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। देन पोर्चुगीज़ की भी थीम है यहाँ पे, उसको आप मॉडर्न में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, बिकॉज पोर्चुगीज़ आ तो गए थे 1492 ऑनवर्ड्स ही, राइट। सो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी आपको बताने की कि किस तरह आपको अब फ्यूचर में हिस्ट्री को जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है और देखना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता तो मैंने केवल इसमें मेडिवल का कवर किया है, बट अगेन सेम इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न ऑल्सो, राइट, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जो मेजर थीम्स हैं उनको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है, बिकॉज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनके लिए आपको परेशान ज़्यादा नहीं होना है, ओके। उसमें से अगर नहीं आता है देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट यूजुअली आप बोलोगे वो नहीं, वो अगर ऐसा है तो वो सबके लिए है, बट ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो मेजर थीम से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू।